Friends, today we'll discuss about the use of spherometer. See, this is our actual spherometer given to you, and in this spherometer we have two scales. One is main scale. This is actually main scale. It's not circular scale. This is our main scale, and this is our circular scale. Nut is given, metallic frame is given to you. Now, using this spherometer, we'll find out the radius of curvature of this curved surface. See, this is a concave surface and this is a convex surface. ये convex ऐसा ऊपर की तरफ है and this is concave surface. So we have to find out the radius of curvature either of the surface, either convex or concave, whatever it is, up to you. Now how to find out? This is our actual spherometer here. So you can see that this is the main scale of the spherometer. On main scale you can see that it is 10, 0, 10 and this is your circular scale where the divisions are given as 0, 10, 20, 30, 40, 50, just like your micrometer screw gauge. Micrometer screw gauge जैसा वैसी का वैसी रहेगा ये, वैसे ही अपने को रीडिंग लेने का, लेकिन इसको रीडिंग लेने का कैसे? Now this basically spherometer main scale, circular scale, 3 fixed leg and 1 movable leg. Movable leg मतलब इसको अगर स्क्रू करेंगे तो this leg moves downward direction, और इसको अगर अनस्क्रू करेंगे तो that moves in upward direction. So this fourth leg is movable leg. First observation is that to find out the average length between the legs, this is the average length or average distance between the legs. Just a minute. We have to find out the average distance between legs. Now, how to find out this average distance between the legs? 3 distances are given, A1, A2 and A3. You consider any one notebook, एक notebook consider करने का, and on this notebook you keep this spherometer, and after that you see that the fourth leg is slightly above this 3 fixed leg. 3 fixed leg के ऊपर होना चाहिए, and so this fourth leg should be above this 3 fixed leg. We have to keep on this notebook, and after keeping this notebook you have to press it. So by pressing this, what will happen? There will be 3 points marked on this notebook. 1 point, 2 point and 3 point. You have to find out the distance between these 3 legs. So for that you join these points. There will be formation of a triangle. Once these points are joined, there will be formation of triangle, and we have to find out the length of the side of each triangle. That will provide you the average distance between the legs. Distance वैसे measure करना है जैसे यहाँ पर है. I will measure the distance that comes as, so it is coming as 2.8 centimeters. Here this distance between these 2 fixed legs is coming as 3 centimeters, and the distance, this one, it is coming as 2.9. तो ये 3 डिस्टेंस है, 2.8, 2.9 एंड 3. वही सेम रीडिंग अपने को यहाँ पर नोट करने का है. सो A1 that will come as 2.8, A2 it will come as 3 centimeters, and A3 it will come as 2.9. Then A1 plus A2 plus A3 divided by 3. Add this. By adding this, it will become as 9 plus 3 means 3.0, 9 plus 0 plus 8, that is 17. 1 carry. This is 3 plus 2 plus 1, 3, 3 plus 3, 6 plus 2, that is 8. It comes as 8.7 upon 3. Dividing this by 3, this 3 2s are 6. 2 remainder, 3 9s are 27, that is coming as 2.9 centimeter. The next one is to find the least count of this spherometer. How to find out the least count of spherometer? जैसा स्क्रू गेज में निकाला था बिल्कुल वही प्रोसीजर अपने को फॉलो करने का है. फर्स्ट इट इज़ वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन ऑन मेन स्केल. इफ यू कैन सी हियर मेन स्केल इट इज़ 10, देन 0, देन 10, और 1-1 मिलीमीटर है ये. बट एक्चुअली क्या होगा, वी विल नॉट कंसिडर दिस एज 10, यू ट्रीट दिस एज 0. इसको हम लोग क्या ट्रीट करेंगे? 0. दिस विल बी ट्रीटेड एज 10, ये 10 हो जाएगा, एंड दिस विल बी ट्रीटेड एज 20. तो उससे वो पॉजिटिव नेगेटिव का रीडिंग का झंझट खत्म हो जाएगा. दिस इज 0, 10, 20. अब यहाँ पर सबसे छोटा डिवीजन 1 मिलीमीटर का है, मतलब 0.1 सेंटीमीटर. सो वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन ऑन मेन स्केल इज 0.1 सेंटीमीटर दिया है इसके अंदर. द नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल. अभी सर्कुलर स्केल पे डिवीजन अगर देखेंगे तो सर्कुलर स्केल पे डिवीजन देखो यहाँ पर कितना दिख रहा है इसके अंदर,
इट इज़ 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100. 0 तक आए वापस 10 डिवीजन होगा तो 100 डिवीजन होगा. तो नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल इट इज़ कमिंग एज 100. The distance through which screw advances on main scale for n rotations of the circular scale. एक्चुअली हम लोग इसको 10 रोटेशंस के लिए मूव करेंगे जैसे स्क्रू गेज में लीस्ट काउंट के लिए किया था. तो क्या करना है, पहले इसको ये 10th डिवीजन पे सपोज एडजस्ट किया हमने, या इसको 0 डिवीजन पे लेके जाते हैं. विल शिफ्ट द एज ऑफ द सर्कुलर स्केल एट 0th डिवीजन, जो अभी हमने इसको 0 कंसिडर किया, जो आपने 10 दिया है. उसके साथ साथ ये सर्कुलर स्केल का 0 इसके साथ मैच होना चाहिए. इफ़ यू कैन सी हियर, सर्कुलर स्केल का जो 0 है वो इसके साथ एडजस्ट हो रहा है. सो इट इज़ कोइंसाइडिंग विथ दिस मेन स्केल. अब इसको 10 रोटेशंस के लिए अनस्क्रू करने का है. तो 10 रोटेशन के लिए अनस्क्रू करने का मतलब 0 वापस उधर ही आना चाहिए. सो विल अनस्क्रू दिस, वापस 0 उधर लेके आएंगे, 0 लेके आए, एक रोटेशन हुआ, वापस उसको अनस्क्रू करेंगे 2, then again unscrewing this is 3, again unscrewing this 4, then 5, then 6, then 7, then 8, 9 and finally it comes as 10. तो 10 रोटेशंस इसका हो गया. एंड फॉर 10 रोटेशंस इफ यू कैन सी दैट एज पहले 0 पे लिया था, ना आफ्टर दिस 0 एज अब पहले जो 0 पे कंसीडर किया था, अब 0 से आते आते वो किधर आया, अभी 10 पे आ गया. इसका मतलब डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, 10 मिलीमीटर्स का डिस्टेंस कवर किया. तो डिस्टेंस थ्रू विच द स्क्रू एडवांस ऑन मेन स्केल फॉर n रोटेशंस इज 10 मिलीमीटर, दैट इज 1 सेंटीमीटर, एंड नंबर ऑफ रोटेशंस गिवन टू दिस इज 10. देन वी विल फाइंड आउट द पिच. वैसे ही होगा, दैट इज़ 1/10 डिस्टेंस अपॉन नंबर ऑफ रोटेशन विच इज़ इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर. देन लीस्ट काउंट ऑफ स्फेरोमीटर इज गिवन एज, पिच इज गिवन एज व्हाट, 0.1 सेंटीमीटर, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल दैट इज 100 एंड दिस लीस्ट काउंट कम्स एज 0.001 सेंटीमीटर. ये हो गया अपना लीस्ट काउंट इसका. इसमें 0 एरर वाला कंसेप्ट नहीं है. फिर उसके बाद रीडिंग कैसा, प्लेन सरफेस कर्व सरफेस के 2 रीडिंग लेने का है, जस्ट लाइक योर स्क्रू गेज. प्लेन सरफेस ये अपने पास दिया एक, जो टोटली ग्लास का सरफेस प्लेन है, इसको अपने को रखने का है. एंड ऑन दिस विल प्लेस दिस स्फेरोमीटर. स्फेरोमीटर रखने के बाद ये जो चौथा लेग है वो नीचे की तरफ लेके जाने का उसको, सच दैट इट टचेस दैट प्लेन सरफेस. तो इसको क्या करना है, उसको इधर फिक्स करना है और 4th लेग इसको मूव करना है, पकड़ के रखना हो. जैसे टच करेगा अपने को समझ में आता है, विल गेट द सेंसेशन, वो हाथ में अपने को सेंसेशन समझ में आता है. इसको स्क्रू करते जाएंगे जहाँ पर टच करेंगे, और वैसे भी इसका एक इमेज दिखाई देता है ग्लास में, वो भी देखेंगे तो भी समझ में आता है. और जिधर टच करेगा उधर ही अपने को रुक जाएगा. देखो इधर टच करके रुक गया. कंफर्म करने का है, विल यूज़ अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर, एक छोटा पीस ऑफ पेपर लेने का है, एंड विल ट्राई टू इंसर्ट इट थ्रू दिस 4th लेग. यू कैन सी दैट ये अंदर नहीं जा रहा है, इसका मतलब टच हो गया. तो 3 फिक्स लेग्स आर ऑलरेडी ऑन द सरफेस, चौथा लेग भी सरफेस को टच कर दिया. उसके बाद अपने को रीडिंग लेने का है. नाउ विल लिफ्ट दिस एंड विल सी दैट वेयर डज द एज इज इंडिकेटिंग. नाउ एज को अगर आप देखेंगे तो एज ऑफ द सर्कुलर स्केल इज इंडिकेटिंग आफ्टर 5 मिलीमीटर. ये 0 मैंने कंसिडर किया ना, 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर, और ये 5 मिलीमीटर के ऊपर दिखा रहा है, मतलब 5 और 6 के बीच में. तो वो तो हो गया मेन स्केल के लिए. फिर डिवीजन कौन सा होता है वो देखने का है. इफ़ यू कैन सी हियर 0, 10 है, उसके बाद ये 11th डिवीजन इसके साथ मैच हो रहा है. तो यहाँ पर मेन स्केल रीडिंग क्या होगा, 5 मिलीमीटर का मतलब 0.5 सेंटीमीटर. डिवीजन कौन सा कोइंसाइड हुआ, 11th डिवीजन कोइंसाइड हुआ, कोइंसिडेंट डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल. फिर 11 को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर्मूला दिया B/LC. 11 इंटू लीस्ट काउंट, 11 इंटू लीस्ट काउंट का मतलब है दिस इज 0.011 सेंटीमीटर. एंड टोटल रीडिंग विल बी एडिशन, दैट इज आफ्टर एडिंग इट कम्स एज 0.511 सेंटीमीटर. फिर नेक्स्ट सेट ऑफ रीडिंग वापस इसको अनस्क्रू करने का है. अगेन विल प्लेस दिस सरफेस. चाहिए तो आप सरफेस को उल्टा कर लो, ये सरफेस पहले ऐसे था, इसको सरफेस को उल्टा कर लिया, वापस रखा इसको. अगेन विल डू द सेम थिंग, इसको पकड़ने का और इसको धीरे धीरे मूव करने का, सो दैट 4th लेग टचेज द सरफेस. सरफेस को टच हो गया, मालूम पड़ता है.
कंफर्म करने का है, पीस ऑफ पेपर एक बार डाल के देखेंगे, दैट मीन्स हो गया अपना। अगेन वी लिफ्ट दिस, सी द रीडिंग ऑन मेन स्केल हीटिंग बिटवीन 5 मिलीमीटर एंड 6 मिलीमीटर, मतलब इसका भी मेन स्केल अपने पास 0.5 सेंटीमीटर ही आएगा। डिवीजन विच इज़ कोइंसाइडिंग, अब यहाँ पर देखेंगे तो 9th डिवीजन कोइंसाइड हो रहा है, तो दिस इज़ 9। जनरली मेन स्केल वैसे बदलता नहीं है। 9 को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई किया, दैट इज़ 0.009 सेंटीमीटर। एडिंग दिस इट कम्स एज 0.509 सेंटीमीटर। देन मीन ऑफ दीज टू, मीन इसका दोनों का ऐड करना है, एडिशन करके मीन निकलेगा। अभी एडिशन करेंगे तो क्या होगा, 0.511 प्लस 0.509, एडिंग दिस 1 प्लस 9 इज 10, 1 कैरी, दिस इज 2, 5 प्लस 5 दैट इज 10, दैट इज 1, दिस इज 1.020, और 1.020 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 0.1 इधर कैरी किया, 5 जा 2 1 जा और ये 0, तो दैट इज मीन रीडिंग इज कमिंग एज 0.510 सेंटीमीटर। जैसा प्लेन सरफेस का क्या वैसी कर्ड सरफेस का लिया है। नाउ हियर विल कंसीडर कर्ड सरफेस फॉर कॉन्वेक्स सरफेस विल बी कंसीडर्ड। नाउ कॉन्वेक्स सरफेस अगर कंसीडर करेंगे तो कॉन्वेक्स सरफेस के लिए अपने को रीडिंग लेने का है। कॉन्वेक्स सरफेस मतलब ऊपर से उठा हुआ जो होता है उसके लिए। अगेन विल अनस्क्रू दिस स्क्रू एंड आफ्टर अनस्क्रूइंग दिस वापस इसके ऊपर रखेंगे, सेम प्रोसीजर वही जैसा प्लेन सरफेस के लिए किया था। अगेन होल्ड इट एंड मूव दिस मूवेबल लेग, चौथे लेग को फिर मूव करने का, सच दैट वो सरफेस को वापस टच करना चाहिए। सरफेस को वापस टच करना चाहिए, ऐसा मूव करते जाएंगे, जैसी सरफेस को टच करेगा रुक जाएंगे। धीरे धीरे इसको मूव करना है, स्लोली स्लोली। यहाँ पर जाने के बाद रुक जा रहा है वो, और जिधर रुक गया उधर स्टॉप करना है। अगेन वी कैन वेरीफाई दिस, नहीं जा रहा है फिर रीडिंग लेंगे, विल होल्ड ऑन दिस। नाउ इफ यू कैन सी हियर, अगर ध्यान से देखेंगे तो ये 6 के थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है, ठीक है, तो 0.6 इसको कंसीडर किया। और डिवीजन जो कोइंसाइड हो रहा है 0 के बाद सेकंड डिवीजन कोइंसाइड हो रहा है, इसका मतलब इधर डिवीजन आएगा 2। इसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, दैट विल कम एज 0.002 सेंटीमीटर्स। एडिंग दिस इट इज़ 0.602 सेंटीमीटर। सेम प्रोसीजर वापस रिपीट करना है। उसी सरफेस को पकड़ा का अनस्क्रू किया, फिर इस सरफेस को रखेंगे, वापस सेम प्रोसीजर अपने को पकड़ के वापस इसको स्क्रू करने का है, एंड स्क्रू करके वापस जहाँ पर रुक जाएगा वहीं पर रुकना है, कहीं पे जाके इधर रुकता है, उठा लिया इसको। एज इज जस्ट अबाउट 6, मतलब इधर मेन स्केल वापस 0.6 आ रहा है। डिवीजन विच इज़ कोइंसाइडिंग, अभी यहाँ पर देखेंगे इट इज़ शोइंग 12th डिवीजन, तो 12वां डिवीजन इधर कोइंसाइड हो रहा है। 12 को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई किया, 0.012 सेंटीमीटर। एडिंग दिस इट विल बिकम एज 0.612 सेंटीमीटर। फिर इसका भी मीन लेंगे तो इट विल कम एज दैट इज 10 12 8 2 8 4, दैट इज 0.606 सेंटीमीटर आता है। 14 607 आएगा शायद, 12 + 2 14 डिवाइड बाई 2 दैट इज 607 सेंटीमीटर। ये हो गया मीन रीडिंग। देन यू हैव टू फाइंड आउट सैजिटा। सैजिटा इफ यू कैन सी दैट, यहाँ पर सैजिटा देखेंगे तो जो चौथा लेग है और जो फिक्स लेग है उनके बीच का डिस्टेंस अपने को मेजर करने का, दैट इज गिविंग एज सैजिटा। वो सैजिटा अपने को मेजर करने का है। ना हाउ टू मेजर दिस सैजिटा, सैजिटा मेजर कैसे होगा। यहाँ पर अपने पास दिया है दोनों प्लेन सरफेस और कर्व सरफेस दोनों का रीडिंग है अपने पास। तो h इज़ एक्चुअली डिफरेंस ऑफ दीज टू रीडिंग्स, इन दोनों का रीडिंग है। सपोज एक को आपने x कंसीडर किया, एक को हमने y कंसीडर किया, तो h इज़ डिफाइंड एज मॉड ऑफ x माइनस वाई। मॉड ऑफ x माइनस वाई मतलब किसी को भी ले लो, सपोज मॉड ऑफ 0.510 माइनस 0.607, और इसको अगर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे दिस कम्स एज मॉड ऑफ माइनस, दिस विल कम एज 90
दैट इज़ 0.97 आता है। अब माइनस है तो इसको प्लस में लेना, दैट इज एच इज इक्वल टू 0.97 सेंटीमीटर। एच मिल गया तो उसके बाद फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर का कैलकुलेशन करने का। रेडियस ऑफ कर्वेचर का कैलकुलेशन कैसा, आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 6h प्लस h बाई 2। इसमें आपको ए स्क्वायर अपॉन 6h पहले निकालना पड़ेगा, फिर h बाई 2 के साथ ऐड करने का। तो ए स्क्वायर बाई 6h अगर कैलकुलेट करने का तो दिस ए स्क्वायर अपॉन 6h इज इक्वल टू, ए स्क्वायर का मतलब ए का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया, दिस इज गिवन एज 2.9 स्क्वायर अपॉन 6 इंटू h is giving as 0.097, extremely sorry, 0.097। फिर ये कैलकुलेशन वैसे ही लॉग एंटी लॉग वाला लेने के, दोनों तरफ लॉग अप्लाई करेंगे, दैट इज लॉग ऑफ ए स्क्वायर अपॉन 6h इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2.9 होल स्क्वायर अपॉन 6 इंटू 0.097। दिस इज लॉग ऑफ 2.9 होल स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ 6 इंटू 0.097। ये 2 आप नीचे उतार देंगे, दिस इज लॉग ऑफ 2.9 माइनस 6 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 6 7 ज़ा 42, 4 कैरी, 6 9 ज़ा 54 प्लस 4 दैट इज़ 58, 5 कैरी 6 इंटू 0 प्लस 5 दैट इज़ 5, 6 इंटू 0 दैट इज़ 0.582। बाकी 2 इंटू लॉग एंटी लॉग अपने को लॉग टेबल से कैलकुलेट करने का, वील यूज़ दिस लॉग टेबल। अब यहाँ पर 2.9 का मतलब होता है इसका कैरेक्टरिस्टिक डेसिमल के पहले एक ही डिजिट, तो कैरेक्टरिस्टिक विल बी 0.29 का 0 देखने का है, डेसिमल नहीं देखते लॉग में। 29 का 0 कितना है, 4624, तो दिस इज़ 4624 माइनस दिस इज़ बार 1.582, डेसिमल के पहले 0 है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक बार 1 आएगा, बार 1.58 का 2, तो 58 का 2 देखेंगे, 58 थ्रो सेकेंड कॉलम इट इज 7649। सिंप्लीफाइंग दिस अब 2 इसके साथ मल्टीप्लाई, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 1 के 2 4 ज़ा 8, 1 9, दिस इज 0.9248 माइनस बार 1.7649। सब्ट्रैक्शन करना है आपको, 0.9248 माइनस बार 1.7649, 1 कैरी 18 माइनस 9 में जाएगा 9, 3 बचा, अगेन 1 कैरी 13 माइनस 4 दैट इज़ 9, 1 बचेगा, फिर 1 कैरी 11 माइनस 6 दैट कम्स एज 5, 8 माइनस 7 दैट इज़ 1, 0 माइनस ऑफ माइनस प्लस 1 दैट इज़ 1, सो इट कम्स एज 1.1599। दिस इज़ लॉग ऑफ ए स्क्वायर अपॉन 6h, लेकिन अपने को चाहिए ए स्क्वायर अपॉन 6h, सो ए स्क्वायर अपॉन 6h विल बी फाइनली एंटी लॉग of 1.1599, and while looking in anti-log we have to search out for 0.15 in 9th column, 9th mean difference। तो अभी यहाँ पे एंटी-लॉग में आ गए हम लोग। अभी एंटी-लॉग में किधर आने का, 15 में 9th कॉलम 1442, और उसका 9th मीन डिफरेंस उधर कितना दिया है, 3 दिया है, सो 1442 प्लस 3 1445, दिस कम्स एज 1445। कैरेक्टरिस्टिक 1 आफ्टर एंटी-लॉग 1 इज एडेड, दिस विल बिकम एज 1 + 1 2, मतलब 2 डिजिट के बाद डेसिमल आएगा 14.45। तो ये ए स्क्वायर अपॉन 6h का वैल्यू है। अब इसमें लाके सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट इज़ फाइनली आर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 6h दैट इज़ 14.45 प्लस h अपॉन 2, h का वैल्यू दिया है 0.097 डिवाइड बाई 2, दिस इज़ 14.45 माइनस दिस इज़ 0.024 ज़ा 8, 1 कैरी 2 8 ज़ा 16, 1 कैरी 2 5 ज़ा 10। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 14.45, सॉरी ऐड करना है, आई एम सॉरी, एडिशन। तो ये डेसिमल के बाद चौथा डिजिट है, चौथा डिजिट जो है नहीं, 5 डायरेक्टली ऐड होगा, 8 डायरेक्टली जाएगा, 5 + 4 दैट विल बिकम एज 9, 0 + 4 दैट विल बी 4, और ये आएगा 14.4985 सेंटीमीटर। दिस इज़ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस पर्टिकुलर स्फेरिकल सरफेस, और उसी की बेसिस पे अपना रिजल्ट आएगा। रिजल्ट विल बी गिवन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर
is equal to 14.4985 centimeter. Okay, thank you.